Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we have completed chapter 5, a good play of our English literature book as we started in our last video. And today we are going to start a new chapter of our English literature book as we started. The number of this new chapter is chapter 6 and the name of the chapter 6 is The Chain of Smiles. Okay, so students, today we will read chapter 6, The Chain of Smiles, and included in chapter 6, The Chain of Smiles, we will read and explain summary of first, second and third stanzas, which is page number 46 and 47 of this chapter 6, and then we will read and note down 15 hard words of the chapter 6 in our Fire English Literature notebook. Okay, so all students, please press past our touch class and listen to my words clearly, because today we are going to read and explain summary of first, second and third stanzas, which is page number 46 and 47 of this chapter 6, and we will also read and note down 15 hard words of the chapter 6 in our Fire English Literature notebook. Okay, so all students, let's see chapter 6. The name of the chapter 6 is The Chain of Smiles. The chain, it's mean janjeer, क्रम या श्रृंखला, of means का, smiles means मुस्कानों. Okay, the chain of smiles, that मुस्कानों की जंजीर या मुस्कानों का क्रम, और we can say also that मुस्कानों की श्रृंखला. Okay, तो मुस्कानों की जंजीर या मुस्कानों की श्रृंखला. Okay, and included in chapter 6, The Chain of Smiles, we will read about peace and harmony. Okay, so students, turn a page forward and let's see this chapter 6. Students, read a story about a girl who creates a chain of smiles. Okay, read means पढ़िए, आ means एक, story means कहानी, about means बारे में, आ means एक, girl means लड़की, who means जो, creates it's mean बनाती है. Okay, आ means एक, chain means जंजीर या श्रृंखला, of means का, smiles means मुस्कानों. Okay, रीड अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल हु क्रिएट्स अ चेन ऑफ स्माइल्स. ओके, इट्स मीन कि एक लड़की के बारे में कहानी पढ़े जो मुस्कान की एक श्रृंखला बनाती. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल हु क्रिएट्स अ चेन ऑफ स्माइल्स. ओके, let's see first number stanza of this chapter 6. One day, Miss Alice gave her pupils a new assignment, an assignment on happiness. Her pupils would be happiness collectors and were to see what would happen when they tried to bring happiness to those around them. Okay, so students, one day means एक दिन, Miss Alice, गैप मीन्स दिया, गैप इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ गिव मीन्स देना, गैप मीन्स दिया, हर मीन्स अपने प्यूपिल्स. स्टूडेंट्स, हेयर द मीनिंग ऑफ प्यूपिल्स, दैट स्टूडेंट्स. ओके, छात्रों. आ मीन्स एक, न्यू मीन्स नया. ओके, एक्साइटमेंट. स्टूडेंट्स, हेयर द मीनिंग ऑफ एक्साइटमेंट, दैट अ पीस ऑफ वर्क. ओके, इट्स मीन एक कार्य, एंड मीन्स एक, एक्साइटमेंट मीन्स कार्य. ओके, ऑन मीन्स पर, हैप्पीनेस मीन्स खुशियाँ. ओके, and students, one day Miss Alice gave her pupils a new assignment, an assignment on happiness. It's mean कि एक दिन मिस एलिस ने अपने विद्यार्थियों को या अपने छात्रों को एक नया असाइनमेंट दिया. खुशी पर एक असाइनमेंट. हर पीपल्स वुड बी हैप्पीनेस कलेक्टर्स. तो स्टूडेंट्स, हर पीपल इट्स मीन जो उनके स्टूडेंट्स थे, उनके जो विद्यार्थी थे ना, वुड बी हैप्पीनेस कलेक्टर्स. वो हैप्पीनेस कलेक्टर्स होंगे. इट्स मीन खुशी संग्राहक होंगे. कलेक्टर्स में संग्राहक. कलेक्ट करने वाला. एंड वर टू सी what would happen when they try to bring happiness to those around them. इट्स मीन कि उनके विद्यार्थी खुशी संग्राहक होंगे, और ये देखना था कि जब वे अपने आसपास के लोगों के लिए खुशी लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा. सो स्टूडेंट, लेट्स सी नेक्स्ट. एज पार्ट ऑफ देयर असाइनमेंट, ऑल द स्टूडेंट्स हु वंडरफुल थिंग्स, बट व्हाट Carla Calmel's death left everyone astonished. Several days after the assignment had been handed out, Carla turned up carrying a big sack. तो एज पार्ट ऑफ दियर असाइनमेंट. इट्स मीन कि अपने असाइनमेंट के एक हिस्से के रूप में. ऑल दी स्टूडेंट्स, सभी छात्रों ने डिड मीन्स किया. डिड इट द सेकंड फॉर्म ऑफ डू मीन्स करना, डिड मीन्स किया. वंडरफुल. स्टूडेंट्स, द मीन ऑफ वंडरफुल, दैट वेरी गुड, बहुत अच्छा. थिंग्स मीन्स चीजें. एज पार्ट ऑफ दियर असाइनमेंट, ऑल दी स्टूडेंट्स डिड वंडरफुल थिंग्स. इट्स मीन कि अपने असाइनमेंट के हिस्से के रूप में, अपने असाइनमेंट के हिस्से के रूप में, उसके भाग के रूप में सभी छात्रों ने बहुत ही अच्छी चीज़ें की. एंड स्टूडेंट्स, बट मीन्स लेकिन. लेकिन जो कार्ला चाल्मर्स ने किया, उसने सभी को चकित कर दिया. स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ एस्टोनिश, दैट सरप्राइज्ड. लेकिन जो कार्ला चाल्मर्स ने किया, उससे सभी लोग चकित हो गए. तो कार्ला चाल्मर्स ने जो किया, उसने सभी को चकित कर दिया, सभी को सरप्राइज्ड कर दिया. एंड सेवरल डेज आफ्टर द असाइनमेंट हैड बीन हैंडेड आउट, Carla turned up carrying a big sack. Students, said the meaning of big sack, that बड़ी बोरी. sack means होता है बोरी. तो फिर क्या होता है कि कार्ड सौंपे जाने के कई दिनों के बाद काला एक बड़ी सी बोरी लेकर आई. लेट्स सी नेक्स्ट. Here is this bag. I have all the happiness I have collected so far.
सी सैड स्माइलिंग. ओके, तो हियर इन दिस बैग, ओके, यहाँ इस बैग में आई हैव ऑल दी हैप्पीनेस. ओके, इट्स मीन कि आई हैव ऑल दी हैप्पीनेस आई हैव कलेक्टेड सो फॉर. सी सैड स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, स्माइल करते हुए कहा, यहाँ इस बैग में मेरे पास आप मतलब आप सबके लिए आज तक की सारी खुशियाँ. ओके, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ इस बैग में मेरे पास अब तक की सारी खुशियाँ हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस हैप्पीनेस कलेक्टर्स. ओके, तो ब्लैक बोर्ड पे राइट होने ना हैप्पीनेस कलेक्टर्स, इट्स मीन खुशी संग्राहक. ओके स्टूडेंट्स, टर्न पेज फॉरवर्ड एंड look at this next stanza. Okay, look at this page number 47. Okay, let's see next stanza of this chapter 6. On seeing this, everyone was filled with expectation, but Kala did not want to show anyone what was in the sack. Okay, तो every on seeing this, okay, तो ये देखकर, okay, ये देखकर कि everyone means हर कोई, was filled means मतलब भर गया. ओके, विथ एक्सपेक्टेशन. ओके, एक्सपेक्टेशन मीन्स फ्रेंड्स उम्मीद. ओके, तो यह देखकर ना हर कोई उम्मीद से भर गया. ओके, बट काला डिड नॉट वांट टू शो एनीवन व्हाट वाज इन दिस सैक. ओके, सैक मीन्स बोरी, ऐसे सीखे. ओके, तो ये देखकर हर कोई उम्मीद से भर गया, लेकिन काला किसी को ये नहीं दिखाना चाहती थी कि बोरी में क्या है. ओके, अब स्टूडेंट्स अगर कोई बोलेगा कि इस सैक में, इस बिग सैक में, एक बड़ी बोरी में, इस बड़ी बोरी में मतलब हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, तो आप तो एक्साइटेड हो जाओगे ना कि हाँ कि कैसी हैप्पीनेस है, कैसी खुशी, ऐसा क्या इस मतलब सैक में कि मतलब ये हैप्पीनेस देगा, खुशियाँ देगा. ओके, तो वैसे ही सारे जो स्टूडेंट्स थे, सारे जो लोग थे, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन मतलब हो गए, बहुत ही उम्मीद से भर गए. ओके, फील्ड हो गए, फील्ड विथ एक्सेप्टेशन हो गए, उम्मीद से भर गए. ओके, और स्टूडेंट से फिर क्या होता है कि इंस्टीट मीन्स बचाए. सी पुल्ड आउट अ स्मॉल बॉक्स एंड गैव इट टू हर टीचर. ओके, तो इसके बजाय कि इस बोरी में क्या है उसे दिखाने की वजह उसने क्या किया कि उसने एक छोटा सा बॉक्स, एक छोटा सा संदूक निकाला और अपनी शिक्षिका को दे दिया. ओके, व्हेन मिस इलिस, उनके स्टूडेंट्स जो काला है, ओके, जो काला चाल में से इसके जो टीचर का नेम क्या है, मिस एलिस है. ओके, तो काला चालिस ने अपनी टीचर मिस एलिस को एक स्मॉल सा बॉक्स दे दिया, एक छोटा सा बॉक्स दे दिया. ओके, और स्टूडेंट्स व्हेन मीन्स जब मिस एलिस हैड टेकन द बॉक्स, जब मिस एलिस वो बॉक्स ले रही थी, तो काला टुक एन इंस्टेंट कैमरा आउट ऑफ हर पॉकेट एंड स्टूड विद इट रेडी ओपन इट मिस एलिस. ओके, तो जब उनकी जो शिक्षिका थी मिस एलिस, ओके, जब मिस एलिस उस बॉक्स को ले रही थी, ओके, जब उन्होंने इस बॉक्स को लिया था, तो काला ने अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से एक इंस्टेंट कैमरा निकाला. ओके, लिया, और उसके उन्होंने क्या किया, और काला ने क्या किया, अपनी टीचर के साथ तैयार खड़ी हो गई. ओके, और बोला कि मतलब कि इसे खोलो मिस एलिस. ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा. एज मिस एलिस ओपन द बॉक्स, ओके, अ बिग स्माइल शोन ऑन हर फेस एंड एट दैट मोमेंट Carla snapped a photo. Carla's photo popped out of the camera and she offered it to Miss Ellis along with a sheet of paper. The teacher read the paper in silence, and when she had finished, she gathered over at the sack. Okay, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि एज मिस एलिप्स ओपन दी बॉक्स. ओके, जैसे ही मिस एलिप्स ने बॉक्स को ओपन किया, ओपन मीन्स खोला, ओपन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ओपन, ओपन मीन्स खोला, ओपन मीन्स खोला. ओके, तो जैसे ही मिस एलिस ने उस बॉक्स को खोला, उस डिब्बे को खोला, ओके, अ बिग स्माइल सोन ऑन हर फेस. ओके, तो उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान की चमक उठी, बहुत ही बिग स्माइल थी. एंड एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण काला ने क्या किया, काला स्नैप्ड अ फोटो. काला ने क्या किया, उसी समय एक तस्वीर खींची. ओके, एंड कालास फोटो पॉप्ड आउट ऑफ दी कैमरा. ओके, और जो काला की जो फ़ोटो थे वो कैमरे से बाहर आ गई. ओके, एंड सी ऑफर्ड इट, और उसने वो ऑफ़र किया, उस फ़ोटो को पेश किया, दिया. ओके, टू मिस एलिस, मिस एलिस को अलॉन्ग विद अ शीट ऑफ पेपर. ओके, तो फिर काला की तस्वीर कैमरे से बाहर आ गई और उसने मिस एलिस को कागज़ की एक सीट के साथ उसे पेश किया, उस फोटो को दिया. ओके, एंड फिर क्या होता है, द टीचर रीड द पेपर इन साइलेंस. जो टीचर थी मिस एलिस थी, काला की जो टीचर है ना मिस एलिस, उन्होंने बहुत ही साइलेंस से, बहुत ही शांति से उस पेपर को रीड किया, उस पेपर को पढ़ा. एंड व्हेन शी हैड फिनिश्ड शी गास्टर्ड ओवर एट दिस सेट. ओके, और फिर क्या होता है, और जब वे मतलब पढ़ना समाप्त कर चुकी थी, उन्होंने इस पेपर को रीड कर लिया. ओके, तो उन्होंने बोरी की ओर इशारा किया. ओके स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ गास्टर्ड. गास्टर्ड मीन्स एक्सप्रेस्ड समथिंग थ्रू अ बॉडी मूवमेंट. ओके, इट्स मीन इशारा किया. ओके, एंड स्टूडेंट्स इट्स मीन कि शरीर की एक गति के माध्यम से किसी चीज़ की ओर इशारा करना. ओके,
तो उसे बोलते हैं, किसी चीज़ को व्यक्त करना उसे बोलते हैं गेस्टर्ड, इशारा किया। ओके, तो जब उस पेपर को उनकी काला की टीचर मिस एलिस ने रीड कर लिया तो उन्होंने क्या किया, उस सैक की तरफ, उस बोरी की तरफ इशारा किया। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड एंड एक्सप्लेन समरी ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टैंजास of the chapter 6, and I hope you must have understood summary of first, second and third stanzas of the chapter 6, which I have explained you in our today's class. Okay, and students, we will read next stanzas of the chapter 6 in our next video. Okay, so students, let's see hard words of the chapter 6. Student, the name of the chapter 6 is the chain of smiles. It's mean ki मुस्कानों की एक श्रृंखला. Okay, so students, let's see hard word. Students, the first number hard word is assignment. ASSIGNMENT, assignment. Okay, it's mean a piece of work. Okay, card. Students, the second number hard word is happiness. HEPPI and ESS, happiness. It's mean कि खुशियाँ. Okay, and since the third number hard word is wonderful. WONDERFUL, wonderful. It's mean अद्भुत या वेरी गुड, बहुत अच्छा. Okay, and since the fourth number hard word is Carla Chalmers. Okay, CARLA, Carla, CHALMERS. Okay, CHALMERS, Carla Chalmers. And since Carla Chalmers is a mean part of this story. Okay, the chain of smiles. Okay, and students, let's see next hard words. Students, or next hard words, fifth number hard word is astonished. ASTONISHED, astonished. It's mean surprised, chakit. Okay, sixth number hard word is expectation. EXPECTATION, EXPECTATION, expectation. It's an ummeed, asha. Seven number hard word is Miss Alice. Okay, Miss Alice is a teacher of काला चालमेस. ओके, इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में मिस एलिस जो काला चालमेस है इसकी टीचर है, शिक्षिका है. ओके, मिस एलिस, MISS, मिस ELLIS. ओके, एंड एट नंबर हार्ड वर्ड इज गेस्टर्ड, GESTURED, गेस्टर्ड. ओके, एंड स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट नंबर हार्ड वर्ड. स्टूडेंट्स, और नाइन नंबर हार्ड वर्ड इज interrupted, INTERRUPTED, interrupted. And 10 number hard word is hundreds, HUNDREDS, 100, it's means sacro. And 11 number hard word is managed, MANAGED, managed. Okay, and 12 number hard word is transmitted, TRNSMITTED, transmitted. And 13 number hard word is responded, RESPONDED, responded. And 14 number hard word is understanding, 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 samajhdari. And last 15 number hard word is afterwards, AFTERWARDS, afterwards. Okay, so students, we have read and note down 15 hard words of the chapter 6, the chain of smiles, in our Far English Literature notebook, and I hope you must have understood these hard words. Okay, you have no problem in any hard words. Okay, so students, today's your classwork is that note down these hard words of the chapter 6, the chain of smiles, in your Far English Literature notebook with your best in writing. It's your today's classwork. And students, your homework is that read this chapter, read first, second and third stanzas of the chapter 6, the chain of smiles, from your English Literature book as Shasta, and also try to find out the summary of these stanzas for second and third. Okay, and I hope you have no problem for find out summary of these stanzas for second and third, which I have explained you. Okay, so all students, firstly complete your classwork, note down these hard words of the chapter 6, the chain of smiles, in your Far English Literature notebook with your best in writing and send me over. Okay, thank you.